السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین ناظرین سامعین، بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے تو اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں، نوجوانوں کو اہم نصیحتیں۔ نوجوانوں کو اہم نصیحتیں، تو اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ سائنسدانوں نے بہت محنت کی ہے کہ کسی بھی طرح ہمیں ہمارے ذہنوں تک رسائی حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ دیکھیں کہ جس طرح کمپیوٹر کے ان پٹس ہوتے ہیں، مثال کے طور پر نوجوان ذرا توجہ فرمائیں، کمپیوٹر کے اوپر اب اگر کی بورڈ لگائیں تو کی بورڈ کے ذریعے بھی آپ اس میں ان پٹ جو ہے ڈال سکتے ہیں۔ ماؤس اگر لگا دیں گے تو اس کے ذریعے بھی ان پٹس جو ہے وہ لوڈ کر سکتے ہیں، ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسکینر لگا دیں تو اس کے ذریعے سے بھی ان پٹس دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈیجیٹائزر لگا دیں ساتھ میں تو کوئی اپنی ڈیاگرام بنانے کے لیے تو ڈیجیٹائزر کے ذریعے بھی آپ اس میں انفارمیشن ڈال سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں کہ ہم اس کے اوپر کوئی اور کمپیوٹر ساتھ میں کانٹیکٹ نیٹورکنگ کر دیں تو اس کمپیوٹر سے بھی ان پٹ اس میں دے سکتے ہیں۔ تو ایک ہی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں آپ کئی طرح سے ان پٹ ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح دماغ کے اندر بھی مختلف راستوں سے ان پٹ آ سکتے ہیں۔ آنکھ سے ان پٹ آتا ہے، زبان سے ان پٹ آتا ہے، ناک سے ان پٹ آتا ہے، ہاتھوں سے ان پٹ آتا ہے، پیروں سے ان پٹ جو ہے وہ بھی آتا ہے۔ مختلف چاروں طرف سے ان پٹ آتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بندے نے کوئی نشے والی چیز اپنے منہ میں رکھی، اب رکھی تو اس نے منہ میں، مگر اس کا جو ہے انفیکٹ کہاں پر پہنچا؟ اس کے دماغ پر، اور وہ جا کر نشے میں آ گیا۔ تو سائنسدانوں نے سوچا کہ منہ کے راستے یہ دوائی دماغ تک پہنچ گئی تو ہم بھی کوئی ایسی چیز بنائیں کہ ہماری مرضی کے مطابق وہ بندے کے دماغ میں پہنچ جائے۔ چنانچہ شروع میں اس پر ریسرچ کی، جس کی ہسٹری اور بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ کوئی خوشبو ایسی بناؤ کہ جس خوشبو کو اگر مرد لگائے اور وہ خوشبو عورت اگر سونگھ لے تو اس عورت کے اوپر جذباتی جنسی کیفیت آ جائے۔ اس پر انہوں نے ریسرچ کیا، یہ خوشبو بنا لی۔ مثال کے طور پر کورم جو نوجوان کالجوں والے لگاتے ہیں، ایسی خوشبو کے اندر
खास चीज ये थी कि उसको जब कोई सूंघता था तो सूंघने वाले में वो हिजानी कैफियत जो है, जिनसी कैफियत जो है बेदार हो जाती है। चुनाचे उसका दिल चाहता था कि मैं किसी से जिनसी बातें करूं या सेक्सुअल बातें करूं, मोहब्बत प्यार की बातें करूं। तो जब उन्होंने मर्दों को इस्तेमाल करवाया और देखा कि जो मर्द लगाता है तो उस माशरे में जो उन कुफार का मुआशरा है उसमें औरतें उनके साथ बहुत जल्दी मोहब्बत की बातें करने के लिए आमादा हो जाती हैं। फिर उन्होंने एक और खुशबू बनाई कि जिसको औरत इस्तेमाल करे और कहीं से गुजर जाए तो खुशबू सूंघने वाला मर्द जो है उसके ऊपर यह कैफियत आ जाए। तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल उसमें कामयाब। तो जब यह कामयाबी उनको मिल गई कि ऐसी खुशबुएं बन गई कि मर्द लगाए तो औरत अट्रैक्ट होती है, औरत लगाए तो मर्द अट्रैक्ट होता है, तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये कि हम इंसान के जहन तक अपनी रसाई हासिल कर सकते हैं। अब उन्होंने एक खुशबू ऐसी बनाई कि जो खुशबू अगर बंदा सूंघ ले तो उस बंदे के ऊपर एक ऐसी कैफियत तारी होती है कि उसका दिल चाहता है कि मैं सारी दुनिया को खरीद लूं। ऐसी कैफियत उसके दिलो दिमाग में बनती है। लिहाजा उन साइंसदानों ने कहा कहाँ पर उसका तजुर्बा किया, बड़े बड़े स्टोरों पर। चुनाचे ये जो बड़े बड़े स्टोर बने हुए होते हैं महलों के बराबर, उनके एयर कंडीशन की हवा के साथ उन्होंने उस खुशबू को जब फेंका तो जो बंदा दिल में नीयत लेकर आया था, नीयत के मैं $5 से नाश्ते की चीजें खरीद कर लाऊंगा, जब उसने सूंघी तो वो $50 के परचेस करके वापस गया। तो उन्होंने देखा कि उनके परचेज एकदम बूस्ट हो गई। और तो यह तजुर्बा से साबित हो गया कि उस खुशबू में बस सेंड कर दूं जो कुछ मेरे पास है। चुनाचे हर आने वाला अपने पास कुछ नहीं भी होता था तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर सब कुछ खरीद कर ले जाता था। चुनाचे जब ये भी तजुर्बा कामयाब हो गया तो इंडस्ट्री के लोगों ने साइंसदानों को कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। इंसान के दिमाग तक पहुंचने के लिए और तजवीज़ें ढूंढो और रास्ते ढूंढो। चुनांचे उन्होंने सोचा कि इंसान का दिमाग इलेक्ट्रिकल वेव्स पर फंक्शन करता है। हमारा जो दिमाग यानी ब्रेन है यह कैसे फंक्शन करता है? यह बिजली की लहरों पर, बरक़ी लहरों पर जो दिमाग से सिग्नल जाते हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, चार्ज होते हैं इंसान के जिस्म में। इसलिए अगर रेडियो चल रहा हो और आप उसके एंटेना को पकड़ लें तो उसकी आवाज़ तेज हो जाएगी, उसकी प्रोग्रेस बेहतर हो जाएगी। यानी आप खुद एंटेना बन गए, आप उसकी वेव्स को रिसीव करके उसको दे रहे हैं। तो इंसान का पूरा जिस्म जो है वो इलेक्ट्रिकल फंक्शन कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा तरीका हो कि हम इलेक्ट्रिसिटी इंसान के दिमाग तक अपना रास्ता बनाए। उन्होंने सोचा कि दिन भर इंसान जो म्यूजिक सुनता है तो ये म्यूजिक पहले तो आवाज होती थी, मगर इंसान के जिस्म में ये आगे इलेक्ट्रिकल वेव्स बनकर जाती है। तो उन्होंने उस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी। उसको कहते हैं वेवलेट एनालिसिस, कि भाई कौन सी वेवलेट है इंसान के दिमाग पर ज्यादा असर करने वाली। चुनांचे उन्होंने ऐसी वेवलेट निकाली
کہ जब वो म्यूजिक बंदा सुनता है तो उठकर नाचना शुरू कर देता है। तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो हमारा तजुर्बा कामयाब रहा कि हम अगर इस किस्म के वेवलेट वाली म्यूजिक बनाना शुरू करते हैं और डालते हैं, प्ले करते हैं, तो मजमे को ज़रा वो म्यूजिक चलाने देते हैं तो हर कोई थिरकना शुरू कर देता है और उठकर नाचना शुरू कर देता है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि हम दिमाग तक पहुंच सकते हैं, लिहाजा उस पर मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत करना शुरू कर दिया भी उन्होंने करते करते उसमें एक सिस्टम निकाला और उस सिस्टम को कहते हैं बैक ट्रैक सिस्टम। ये बैक ट्रैक सिस्टम क्या है? ये बैक ट्रैक सिस्टम जो है, म्यूजिक जो होती है वो तो वेव बार में होती है, उसके ऊपर अपना एक मैसेज बैठा देते हैं। यूं समझें कि घोड़ा जा रहा है, उस घोड़े पर सवारी बैठा दी। उसकी मिसाल यूं लें कि आपने तो अपने भाई के लिए दरवाज़ा खोला कि अंदर आ जाओ, लेकिन भाई के कंधे पर मक्खी बैठी हुई थी, वो खुद ब खुद अंदर आ गई। बिल्कुल उसी तरह बंदे ने तो म्यूजिक सुनी कि मैं रिफ्रेश होने के लिए यह गाना सुन रहा हूँ, मगर उस म्यूजिक के ऊपर जो उनका पैगाम था वो खुद ब खुद उस बंदे के दिल और दिमाग में चला गया। बंदे ने वो इरादतन नहीं लिया होता, मगर वो दिमाग में पहुंच जाता है। जब वो दिमाग में पहुंच जाता है तो दिमाग पर असर करता है। चुनाचे उसका तजुर्बा उन्होंने शुरू में यूं किया कि एक गाना बनवाया एक ऐसे गवैये के ज़रिए से कि जिसकी आवाज़ को लोग पसंद करते थे और उनको पता था कि उसकी आवाज़ को लोग पसंद करते हैं और जो गाना पसंद करेंगे वो एक दो दफ़ा नहीं, वो सैकड़ों दफ़ा सुनते रहेंगे। दफ्तर जाते भी सुनेंगे और आते वक्त भी सुनेंगे, दिन में भी सुनेंगे और रात में भी सुनेंगे। चुनाचे उन्होंने क्या किया कि उस गाने पर उन्होंने अपना पैगाम भेजा, और पैगाम क्या था कि किल योर मॉम, ये पैगाम दिया उसने, किल योर मॉम। तो फिर उन्होंने एनालिसिस किया कि जितने नौजवानों को वो गाना पसंद था, वो सुना करते थे, उनके अंदर अम्मी के बारे में ऐसा गुस्सा आता था कि उनका दिल चाहता था कि मैं उनको कत्ल कर ही दूं। अब जब उन्होंने उसका भी तजुर्बा कामयाब देखा कि जितने लोगों को भी ये गाना पसंद है, उन सब का हमने नफ्सियाती जायज़ा लिया है, वो सब अपनी माँ के खिलाफ हो गए हैं। उन्होंने एक मैडोना को कहकर दूसरा गाना गवाया और उस पर मैसेज दिया, हेट योर डैड। चुनाचे उन्होंने कहा यह गाना जितनों को पसंद आया तो नौजवानों को जब उन्होंने उनका एनालिसिस किया तो उन्होंने देखा कि उनके दिलों में बाप के बारे में बड़े नफरत के जज्बात हैं। अब उनको समझ लग गई कि हमारे पैगाम लोगों की मर्जी के बगैर उनके दिल और दिमाग में जो है जा रहे हैं और उनके खानों में बैठ जाते हैं। तो यह साइंस की दुनिया में बड़ी कामयाबी थी। चुनाचे इस वक्त के अरबाब इख्तिदार थे, उन्होंने राबिता किया कि हम लोगों में आपकी मर्जी के पैगाम भर देते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, आजकल हमारे यहाँ मर्दों से शादी का सिलसिला शुरू हो चुका है, हमने कानून पास किया है, आप बात समझ गए हैं। हमारी तो उसके खिलाफ पब्लिक बहुत जो है उसका प्रचार चल रहा है, लिहाजा तुम कोई ऐसा पैगाम डालो कि हम टीवी पर म्यूजिक के जरिए वो सुनाया करें और हमारी पब्लिक जो है उस खिलाफ जज्बात ख़त्म कर दें और फेवर में हो जाएं। उन्होंने एक म्यूजिक बनाई और उस पर कौन सा सिग्नल डाला
یہ لائف سٹائل اب جو بندہ میوزک سن رہا ہے، یہ لائف سٹائل انہوں نے دیکھا کہ چند مہینوں کے اندر جو اس لائف کے خلاف بہت باتیں کرتے تھے، وہ سارے کے سارے چاہتے تھے کہ ہم بھی ایسی زندگی گزاریں۔ اب جب یہ تجربہ بھی ان کا کامیاب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ ایک ٹول ہاتھ میں آ گیا کہ ہم کسی بندے کے دماغ میں میوزک کے ذریعے اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک پیغام بھیجا ایک گانے میں، ورشپ دی ڈیول۔ چنانچہ جب یہ بیک ٹریک اس میں تھا تو انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ بڑے مذہبی قسم کے تھے لیکن اس گانے کو پسند کرتے تھے، تو اس گانے کو سننے کے بعد وہ بھی کہتے تھے کہ کیا دین ہے اور کیا خدا ہے۔ وہ بھی کہتے تھے جی بس اپنی من مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ اپنے خفیہ پیغامات کی وجہ سے ان کی کئی مثالیں آپ دیکھیں گے۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اسی موضوع پر انشاءاللہ اگلی کڑی آپ کو اگلے نشست میں پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔